Very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with acids part, carboxylic acid of aldehyde ketones. So the third part is carboxylic acid. In acid, beta, there is C double bond OH. Okay, so this is carboxylic acid group. Functional group is COH. I can write it this way also. General formula is CnH2n O2. Why O2? Because there are two O's. I can also write it as CnH2n plus 1 COOH. Right? Then beta, from alkene we remove H and we add COH. Then we call it as carboxylic acid. Carbon is which hybridize? Can you say 3 sigma bond? So it is sp2 hybridized. And this is pi bond. So during reaction, this pi electron will go here. Hybridization beta, whenever there are 4 single bond, then it is sp3. Three bond and 1 double. We have to count only sigma bond. Number of sigma bond and lone pair. So here how many sigma bond are there? 3. So it is sp2. Here how many are there? 4, na? So sp3. If it is like this, so only 2 sigma, because these two are pi. We don't consider pi bond. So it will be which hybridized? sp. So generally then in acids beta what we study, okay? So whenever I write this way beta, so this is your carboxylic acid, COOH. General formula is CnH2n O2. Now for common name we write ic acid. And for IUPAC we write alkanoic acid. Okay, for one carbon we write beta? For one carbon we write form. So what will be the name? Formic acid. For 2 carbon what we write? Acet. So it will be what beta? Acetic acid. For 3 carbon we write butyr. So it will be butyr. For 3 carbon we write propion. Propionic acid. Clear? So look here beta. Directly note beta, we'll study only this aliphatic one. Okay. I want directly to come here. This aromatic and all that. Okay. Any compound which has only one COH, we call it as what? Monocarboxylic acid. If they have two, then we call it as dicarboxylic. This all you don't have in your syllabus, huh, beta? Okay, if I have two, can you see two? So it is dicarboxylic acid. Two groups means dicarboxylic acid. Okay, if I have three, then tricarboxylic acid. In this dicarboxylic acid, this is very important. If there are two COOH, we call them as what beta? Dicarb. For them, how to write the name? The trick is that we write this, and CH2 we write N times. And there are two COH2. Now, if N ka value is 0, then we call it as what beta? Oxalic acid. Ohm's gap. You have to remember. Ohm's gap. If N is 0, then what I'll get here? Yeah, this entire thing is cancelled. COH only. Because CH2 will not come only, na beta. If N ka value is 1, then I'll give you the cancellation. Don't worry. Hey, this was which acid? Oxalic acid. If N ka value is 1, what acid it will be? Malonic acid. So for N ka value 1, what I'll get? COOH, CH2, then again COOH. Are you getting it? If N ka value is 2, can you see 2? Then it will become what? Succinic acid. Succinic or succinic. Can you see beta? I have written here. Can you see the, look beta, twice. If N ka value is 3, then it will become what? Can you see here 3? It will become glutaric acid. Ohm's gap. I have written beta, the trick. Ohm's gap you have to remember. Can you see here I have written Ohm's gap. Clear? N ka value is 4. So what I'll write here? I'll write it 4 times. So it will become what beta? Adipic acid. If N ka value is 5, then I'll write it here what beta? Pimalic acid. Is this clear? Okay. Then beta, you have to just remember if there are two, whenever only one COH, then it is benzoic acid. If there are two, then we call it as phthalic acid. Now we are going to start with the naming. Chalo beta, aaja fatafat. Look beta, I told you, beta, whenever it is ic acid. What I'll write beta? Melroy, look here. What we write beta? Ic acid. So 1 so formic, 2 so acidic, 3 means propionic, 4 means butyric, 5 means valeric, 6 means caproic acid. Okay. From these name are derived from their source, formica, red ant, acetum, vinegar, propionic acid, first fat, butyric acid, petroleum, valeric acid was the perennial plant, caper means goat fat में होता है ये acid. Okay, now beta, there is one more system where common name only, wherein what we do beta, whenever the functional group is attached to any carbon, whenever a functional group is attached to any carbon,
वी कॉल दैट कार्बन एज अल्फा, उसके बाजू वाला क्या हो जाएगा, बीटा। तो बेटा अगर अल्फा पे अगर मिथाइल होगा तो आई राइट अल्फा मिथाइल एंड द नेम ऑफ द एसिड. If it is on beta position, I'll write beta and name of the acid. So here now tell me beta where it is. Tell me. Look, if I take this, this is my main functional group. So this is my alpha. This is my beta. So it will be what? Alpha methyl. And here how many? 3 carbons. So propionic acid. Here it is how much beta? This is your alpha. Alpha methyl. And how many carbon are there? 4. So alpha methyl butyric acid. Here, this is my main functional group attached to this carbon. So alpha pe methyl, alpha comma, alpha dimethyl propionic acid. Understood? So this kind of naming is only done in acid. Yeah, it is done in aldehyde also. We did in aldehyde also now. In aldehyde. Alpha and beta? Yeah, alpha beta. But that is a common name, not IUPAC. Yeah? Not IUPAC. IUPAC will come beta. Okay. So now here if you see on alpha, there is what beta methyl and beta also methyl. So alpha comma beta dimethyl butyric acid, common name again. This is alpha pe methyl, beta pe ethyl. So who will come first? IUPAC alphabetical order. Ethyl will come first. So beta, ethyl, alpha, methyl, and how many carbon were there in this chain? 1, 2, 3, 4, 5. Valeric acid. Clear? Now here this was alpha. This was my main functional group now. So alpha and beta. So beta pe methyl, and how many? 4. So butyric acid. Clear? Now in IUPAC we write alkanoic. Oic we add. What we add? Oic. So this will become 1 carbon methanoic, ethanoic, propanoic, butanoic, 4 carbon butanoic, 5 carbon pentanoic, 6 carbon hexanoic. Now here in IUPAC will write this number. Look beta. This is my longest chain. So 1, 2, 3. So propanoic. Okay. And then 2 methyl propanoic acid. 1, 2, 3, 4. 3 methyl and total carbon are how much? 4. 3 methyl butanoic acid. Here it is what beta? 1, 2, 3. 2, 2 dimethyl propanoic acid. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. 5 means pentanoic. Hey, 3 पे कौन है ethyl, 2 पे कौन है methyl. Ethyl will come first, alphabetic order. Same thing here beta. 1, 2, 3, 4, 5. The same structure here. Repeated. Beta, whenever acid in another functional group is there, acid is always given the lowest number. So 3 bromo, propanoic acid, 3 carbon. 1, 2, 3, 4. 3 chloro, butanoic acid. Now, whenever 2 carbon, 2 carboxylic, remember we did Ohm's gap? Oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic, pimalic. बट IUPAC में हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन डायोइक एसिड. 2 बार है ना बेटा? यहाँ पे कितना है? 2 है ना बेटा? 2 कार्बन. सो 2 मीन्स इथेन डायोइक एसिड. हियर इट इज 1, 2, 3 प्रोपेन डायोइक एसिड. 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन डायोइक, पेंटेन डायोइक, हेक्सेन डायोइक. ओम्स गैप वी हैव डन बेटा. ना बेटा whenever बेंजीन पे COH होगा तो इसको क्या कहते हैं? बोलो ये बेंजोइक एसिड. ना बेटा एसिड एंड ये रहेगा तो एसिड इज योर पेरेंट. तो 1, 2, 2 पे कौन है? फिनाइल. And this is what? Ethanoic acid. 2-phenyl ethanoic acid. Understood? IUPAC पे फोकस करो बेटा. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो बेटा. This is your benzoic acid. 1, 2, 2 nitrobenzoic acid. Here it is what beta? Tell me. Benzoic acid का acid get the lowest number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 trinitrobenzoic acid. मैंने क्या बोला था? आजू बाजू में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे? थैलिक एसिड. बट IUPAC में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? बेटा whenever it is outside, तो ये वाले पार्ट को हम लोग बेंजीन बोलोगे. और इसको क्या कहेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे अल्डिहाइड में व्हेन इट वाज आउटसाइड वी यूज्ड टू कॉल इट एज व्हाट बेटा? ऐसा होता था. याद आ रहा है कि नहीं? इसको कार्ब अल्डिहाइड बोलते थे. याद आ रहा है? बट आउटसाइड लेंगे तो अगर आपने एरोमेटिक में तो एरोमेटिक ही है ना भाई. क्यों नहीं एरोमेटिक? किस में? दूसरे में अल्फाटिक. एलिफेटिक में तो पेरेंट में आता था. यहाँ पे तो 2 बाहर है ना बेटा. बट अल्फाटिक में भी बहुत बार हमने ये भी लिया ना. क्या? कार्बोहाइड्रेट. नहीं, वो अल्डिहाइड रहेगा. तो यहाँ पे ऐसे इसमें भी बोल रहा हूँ. इसमें तेरा क्या डाउट? क्या मेरे को बता ना. कौन सा? अल्फाटिक में भी ये ले भाई. ये ले, ये एलिफेट. इसमें क्या करेगा तू? प्रोपेनोइक एसिड.
हाँ बट इसमें आप कार्बोक्सिलिक नहीं लिखेंगे लिखते। ना। हाँ, रिंग में ही आएगा, वो रिंग में आएगा, रिंग में ही आएगा, वो भी दो से ज्यादा होगा तो, एक होगा तो बेंजोइक एसिड होगा, फिर एक से ज्यादा होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा इसको हम लोग क्या कहते थे, याद आ रहा है, सैलिसिलिक एसिड। बट आईयूपीएसी में क्या करेंगे, 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देख एक में रहेगा तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा है मैंने, दिख रहा है। इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोलते थे, सैलिसिलिक, रिमेंबर। रिमर टिम्बर में ये प्रोडक्ट बनता था बेटा। ओके, अब बेटा इधर पे आ जाओ, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Now, beta, there is a trick for method of preparation. Beta, we can directly, main thing you have to remember, beta, main, what is the main part? Okay. First, I'm doing from what, beta? Cyanides. ये देखो बेटा, oxidation of, ये क्या है? Ooh la la, where it is? Okay, not a problem. This we are doing. Acid hydrolysis. Cyanides को we call it as nitrile also. Acid में मतलब I am going to use acid, and alkaline में I am going to use KOH or NaOH. पहले एसिड वाला बताता हूँ। RCN है, आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, वाटर। सिमेट्रिकल है, ब्रेकिंग होगा तो कैसा होगा बेटा, बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव। H प्लस, H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नो H पे नेगेटिव है, नेगेटिव विल गो टू कार्बन। कार्बन, वेरी गुड, यू गेट दिस वे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। देन व्हाट विल हैपन बेटा, यहां से H जाएगा इधर पे, वो NH2 बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, एसिड अमाइड। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोटोमेरिज्म बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, तो डबल बॉन्ड विल गो यार, नेच विल कम हियर, टॉटोमेरिज्म वी कॉल इट, अमाइड बन गया। तो ऑटोमेटिक में आपको समझा। हाँ, टॉटोमेरिज्म मींस व्हाट, यू नो बेटा, ये देख सी डबल बॉन्ड ऐसा था बेटा, who is more electronegative between carbon and oxygen? So now this is your pi bond. Pi bond is weak. We have done in aldehyde also बेटा, याद आ रहा है ना। तो ये इधर पे जाएगा, ये इधर पे जाएगा, तो इसका ये जो H था, कार्बन कैन फॉर्म ओनली हाउ मेनी बॉन्ड्स बेटा, oxygen can form only 2 bonds, oxygen, carbon will form 4, so what will happen, it will rearrange, so ये डबल बॉन्ड हो इधर आएगा, तो ये H यहाँ पे से घूम के इधर पे आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं, तो NH2 हो गया बेटा। ओके, बट हमको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मेन रिएक्ट प्रोडक्ट याद रखना। अभी आप फर्दर इसका मैं क्या करूंगा बेटा, बेटा हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अमोनिया, और ये OH इधर पे अटैच हो जाएगा, देख बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं। तो आपको मेन एग्जाम में क्या याद रखना है, RCN का, इफ यू डू एसिड हाइड्रोलिसिस कंप्लीट, पार्शियल में अमाइड बनता था, कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस ऐसा मैंने लिखा, तो CN की जगह पे कौन आ जाएगा, खाली आपको ये याद रखना है, COH, दैट्स इट। दिखाई दे रहा है बेटा ये, अभी बेटा ये HCl और अमोनिया रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है बेटा, क्लियर है ना बेटा। तो देखिए मेन रिएक्शन है बेटा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। RCN का CN की जगह पे क्या आएगा, बोलो बेटा, COOH। सो आई हैव गिवन ऑल द रिएक्शन, लुक हियर बेटा। Hmm. Yeah. Dun, dun, dun. I want all of you to come to my notes. तो कैसे है, देख फर्स्ट स्टेप में मैंने बेटा ये देख रहा, स्टेप 1 2 3 4, लेकिन आपको मैंने मेन है ना ये, दिस इज द मेन, इसको इसको बॉक्स में डालो, दिस इज द नेट। आपको एग्जाम में वो सब नहीं दिखाना, यू विल ओनली राइट दिस, आर यू गेटिंग इट, यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल दो स्टेप। लुक, RCN, acid hydrolysis, water will be there, acid, and heat it, so you get what, carboxylic acid with same carbon. A alkyl cyanide is also called as alkane nitrile. Alkane nitrile is the IUPAC name, where will count all the carbon. So suppose beta, if I put R is equal to CH3 here, so what I'll get, tell me, CH3 से लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड और नॉट, टेल मी। अच्छा, मिथाइल साइनाइड में दिव्या बेटा कितना कार्बन है, बोल बेटा, दोनों में 2 है ना बेटा, तो इथेन नाइट्राइल, IUPAC में भी काउंट ऑल कार्बन। नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द ट्रिक, CN की जगह पे क्या आ जाएगा, so methyl cyanide will give you acetic acid, ethyl cyanide will give you what, अगर मैंने यहाँ पे इथाइल ले लिया रहता तो विच एसिड, अरे प्रोपेनॉइक,
बराबर है कि नहीं? सेम कार्बन, कार्बन कहाँ बढ़ रहा है? तो CN का तो, अरे बेबी अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिया तो हम नहीं कार्बन आ रही है टोटल, कार्बन ED2, तो दो कार्बन वाला ही बना ना, दो कार्बन वाला ही ना। इफ आई टेक हियर 3 कार्बन देन सेम, आई कैन आइदर यूज सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो बेटा, एनीवे नो फाइटिंग। तो पानी ले रहे हैं। पानी पानी कर दूंगा मैं सबका। बेस हाइड्रोलिसिस में आई टेक बेस, लुक यार, देख यहाँ पे एरो पे क्या लिखा है मैंने, NaOH, देयर व्हाट वाज द वे वी यूज एसिड, सेम थिंग विल हैपन हियर, tautomerism, look, amide I get, then I'm going to add hydrolysis, look acid, but here problem, what will problem will happen बेटा, ये acid बन जाएगा, but this is base ना बेटा, this base will further react with this acid to give you रुको ना, अरे रिएक्ट होके देख Na हो जाएगा, रोको ना, ये ले रोको ना। क्लियर? लेकिन आपको मेन रिएक्शन ये याद रखना है, दैट्स इट। ये लेकिन अपने को रुको ना चाहिए क्या, नहीं ना, अपने को एसिड चाहिए ना, तो इसको आई फर्दर एड HCl सेकंड स्टेप में, Yes. समझा ना, तब जाके एसिड बनेगा। ये मेन है, ये मेन है, देखो, लोग यार बेस हीरो, देख अल्कलाइन, दिखा क्या, दिखा क्या, ये देख दो ही लिखने, ये जी हो जाएगा शाम पे। क्या, एकदम ऐसा खत्म, फिनितो मैन, ये देख बेटा, ये देख बेटा, डन डन डन, Yes, done. फिनिश बेटा, यू कैन फिनिश दिस चैप्टर इन 1 डे ओनली। हाँ आराम से, पहला जनरल रिएक्शन देखने का, सिर्फ मोटा दिख रहा है, कुछ है नहीं इसमें, देखा ना हम लोग ने कितना। हाँ तो अरे बट कॉन्सेप्ट चैप्टर इज सच अ बिग ना बेटा, तो फिर एक दिन में यू फिनिश इन 2 days, ओके। ओह माय गॉड, तो अच्छा मैं तुमको बताऊंगा, अरे जनरल रिएक्शन खाली देखो ना, आई हैव सेंड द जनरल रिएक्शन, क्यूबी तो टाइम, क्यूबी तो अभी है। आंसर की आंसर की बोल रही हूँ। 40 पहले वाला में 20 हाँ तो बेटा मैं करवाता हूँ ना, मैं क्यूबी क्लास में करा दूंगा इसका फटाफट एकदम, ठीक है। Wait, 14 plus 10 plus 12 जो भी है around 40। एक कल हिसाब किताब करेंगे, इधर देख भैया, ए चैप्टर खत्म करते हैं चलो। आई टेल यू बेटा, फर्स्ट लिसन डियर, मैंने आपको एक आज है ना ये भेजूंगा, ये क्या बोलते हैं इसका फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट देखोगे तो आपको रिएक्शन आ जाएगा, देन बाद में क्यूबी में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट थिंग। चले, बिग नोट्स मैंने बनाया नहीं है इसका, चाहिए था आपको बिग नोट्स? कनेडियन ना, हाँ, ठीक है, देखता हूँ यार वो, अरे नहीं यार वो ऑटो कैड में बनाना पड़ता है उसको, टाइपिस्ट को देख। चलो चलो एनीवेज, ये देख ले बेटा, अमाइंस में आई गिव, अमाइंस में आई गिव, अमाइंस में आई गिव, डोंट, छोटा हाँ छोटा नहीं है, बड़ा है, छोटा है लेकिन अरे कोई वो है। अरे ये तो करने दे अभी, हाथ से खत्म। चलो ए बेबीज एंड बाबाज प्लीज, ये देख यहाँ पे NaOH आता है, देख रहा है कि नहीं, फिर सेकंड स्टेप में HCl डाला बस, इसको अल्कलाइन क्यों बोला, NaOH वाज देयर। चलो सब्स्टिट्यूट टेक एग्जांपल, छतरी लेते हैं, चलो पहला तो मिथाइल साइन, सेम थिंग, एसिटिक एसिड ओनली आई गेट, इथाइल लेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, चिंदी, देखा ना ये कितना फटाफट खत्म होता है, खाली मेन दो रिएक्शन याद रखना है। If I take Ajay, now look here, this is what beta benjamine, Karim benzema, benjamide it is, benzamide, तो बेंजामाइड क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। चलो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ड्राई आइस, ड्राई आइस, हाँ इसका एग्जांपल तो करते ना थोड़ा अपन, ये देख इसमें मेन ये याद रखने का था, साइनाइड बिकम्स व्हाट, कार्बन। एग्जाम में मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, चलो क्या करेगी बोल, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ओके अच्छा ये कन्वर्जन हो गया, मल्टी कन्वर्ट, मिथाइल ब्रोमाइड से तेरे को क्या बनाने का है, एसिटिक एसिड, कार्बन एटम बढ़ाना है, तो टू इंक्रीज कार्बन एटम वी शुड ऑलवेज यूज व्हाट, KCl, तो पहले मैं इसको KCl के साथ रिएक्ट करूंगा बेटा, देख रहा है,
तो मेरे को क्या मिल जाएगा बोलो बेटा, मिथाइल साइनाइड। अभी अब नाउ वी डिड मिथाइल साइनाइड का व्हाट वी डू, एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? अच्छा बेटा, ये मल्टी कन्वर्जन का है ना, मैं तुमको बताऊंगा मल्टी कन्वर्जन का, मैंने उसके लिए आपके लिए चार्ट बना के रखा है। मल्टी कन्वर्जन मतलब मैं आई शो यू, है हाँ, मैं आई गिव यू बेटा, वेर इट इज, ये hey look, I have prepared this chart for you all. Look, this colorful chart I am going to give you and we'll do all multi conversion in this, but वो अमाइंस के बाद ही हम लोग करेंगे, अभी नहीं। देख, कार्बन को इंक्रीज करने के how many reactions are there? Only two, KCN, Grignard and Wurtz. कार्बन डिक्रीज करने का तो हॉफमाइंस ब्रोमोमाइड, यू हैव नॉट स्टडीड दिस, वी आर गोइंग टू डू इन अमाइन। फिर देखो, आई हैव गिवन ऑल दिस बेटा, रिमेंबर बेटा, वी हैव डन दिस इन हैलोजन डेरिवेटिव, राइट ना? फिर हाँ, I'll be giving to you all these notes. हाँ, I'll tell you ना बेटा, we'll do multi conversion फटाफट। देखिए ए बेबी, ये देखिए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, टुडे वी डिड दिस पार्शियल, इफ यू डू दिस। अरे बेटा, अरे ये खाली सब चैप्टर, ए रुकना, बात कर रहे हैं देखा, पहला सुनो तुम लोग, मैं बता रहा हूं ना तुम लोगों को, मैं कराऊंगा, सिर बिर मत पकड़ो, ऐसा दुखी मत, डोंट गो अंडर डिप्रेशन, इट इज वेरी इजी बेटा। व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस चार्ट एंड आई विल टेल यू टू कन्वर्ट, एंड आप लोग खुद कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है ना बेटा? सो दिस इज फॉर ऑल, ये नो देख, दिस ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंक्रीज द कार्बन, कन्वर्ट इथेनॉइक इनटू प्रोपेनॉइक, तो सोचने का कैसे, सुनो, हाउ टू थिंक, आई विल टेल यू। एक मिनट, ये दिख गया, हाँ बेटा बोल। अच्छा मुझे बताओ, मैंने तेरे को अमोनिया का नोट्स दिया हुआ है क्या? अमोनिया तू चेक कर ले, अमोनिया HCl, दिया है कि नहीं दिया है वो? अमोनिया का नहीं दिया और HCl का नहीं ना, नाइट्रिक एसिड और वो सब दिया है ना? मेटलर्जी हम लोग ने कर दिया ना बेटा, हम लोग ने किया ही नहीं, नोट्स दिया है कि नहीं मेटलर्जी का? अरे ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। टुडे यू डोंट ब्रिंग एनी नोट्स, आई विल ब्रिंग एनालिटिकल, तो वी हैव डन, ठीक है ना? चलो आ जाओ, ये बस, ये देख, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिसन लिसन डियर, ओके, ये देख, 2 कार्बन विल बिकम हाउ मच, 3 कार्बन, ऐसा मतलब यू हैव टू इंक्रीज, तो वैसा हम लोग कन्वर्जन करेंगे, तो उसके लिए खाली यही ट्रिक याद रखने का, इंक्रीज तो ये, डिक्रीज तो ये देख, फिर ऐसा पूछेंगे 3 कार्बन to 2 कार्बन, आई विल टीच यू, डोंट वरी, बट ये अमाइंस होने के बाद ही आपको आएगा, ठीक है? फिर आपको मैं बताऊंगा, इसके अंदर सब चैप्टर इंक्लूड हो गया, देख ना, ये एल्डिहाइड, देखा, फिर वो ऑक्सीडेशन वाला भी, फिर याद आ रहा है ये बेटा, ये वाला भी, TCC PDC कॉपर, राइट? फिर ये देखिए रशियन स्टेफन रिएक्शन, दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें सब मैंने कवर किया, क्लेमेंसन्स भी है, देख बेटा इसमें, रोजनमंड, दिख रहा है कि नहीं? क्लेमेंसन्स, वुल्फ किश्नर, फिर बेटा मैंने एरोमेटिक रिंग का भी कन्वर्जन दिया है, ये देखो, ऐसे कन्वर्जन भी आएंगे, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा बड़ा, इससे ये बनाओ, ऐसा मैंने एग्जाम में बोला, तो कैसे बनाओगे? इससे ये बनाने का, इससे ये बनाने का, इससे ये बनाने का, इससे ये बनाने का, ओ आएगा आएगा, डोंट वरी, आप लोग करोगे बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, हर साल बच्चे करते हैं, करोगे, अरे अलग नहीं है, सब सेम ही है, फिर ऐसा बोलेगा इससे ये बनाओ, अरे आई टेल यू द ट्रिक ना बेटा, हाँ बस, मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, हाँ यस, चलो बेटा इधर आ जाओ, होगा, ठीक है ना? ये देख, अभी देख, ये साइनाइड का भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बन गया कि नहीं एसिड? चलो, तो फर्स्ट मेथड वी डिड, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। अरे मैंने पूरा एकदम इतना एफर्ट लेके ये पूरा रंगीन चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, ओके? एनीवेज, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट फ्रॉम ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को व्हाट डू वी कॉल? ड्राई आइस। एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसमें भी बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी आर गोइंग टू ऐड, व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखिए, डन डन, आ जाओ, ड्राई आइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R इज पॉजिटिव, Mg इज व्हाट? नेगेटिव, ड्राई आइस में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक किसी को ले लो,
कार्बन और ऑक्सीजन who is more electronegative? Oxygen. So pi bond will go to oxygen. देख बेटा, कोई एक का है। हाँ एक का ही, किसी एक का ही होगा ना, तो देखना ये ऊपर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव, तो इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्लियर? ओके नाउ दिस सर, तो आर इस पे गया और mgx ये ओ पे गया बेटा, बराबर है कि नहीं? अरे दिस वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इवेंट हियर, इट वाज हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस वाज पॉजिटिव, so R will attack here. Yeah. Then what we have to do? Acid hydrolysis. है? ये सब तुम्हारे टाइम पे ये सब होता है, इतना सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। That's it. Oh, that's all stuff. And private charge. Yeah, charger is here. Give me, bro. Is Adu getting raped? He texted me that. Why is he not allowed? Since Brahma and God. Say that again. Say that again. What is that? Say again. Oh, except I am not accepting it. Why is it good? Sound to feel. चलो चलो, a carbon and oxygen who is more electronegative, this bond will go here, this will acquire what? Negative, this will acquire positive, so R is going here and mgx here. Now what we have to do? Always after Grignard reagent, second step is always hydrolysis. What we add? Water. So H will come here. Look, acid बन गया कि नहीं? A. क्लियर है? ए इधर इधर देख, Yes, sir. यहाँ पे देख, समझेगा अच्छे से। शॉर्टकट में बताओ क्या बेटा, देख इसमें कितना कार्बन है? 1, और इसमें कितना कार्बन होगा? मिनिमम 1। तो यहाँ पे जो भी ग्रिग्नार्ड रीजन में जितना कार्बन होगा उससे एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बनेगा। ठीक है, चलो। विच ग्रिग्नार्ड रीजन विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड? चलो, अरे अच्छा मैं तुमको एक पहले ये बताता, ये ले पीछे जाओ, पीछे जा बे। यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल लिया रहता तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो बोलो ना क्या बनता? बोलो। अबे आर है ना, आर के जगह पे यहाँ तो बस इथेनॉइक एसिड बन जाता। इजी। सो आई वांट टू प्रिपेयर नाउ बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड में व्हाट विल हैपन? अरे सीओ पार्ट इज ऑफ का इसका बेटा, ड्राई आइस का पार्ट तो सीओ है, तो क्या लेना पड़ेगा? विच ग्रिग्नार्ड रीजन? डी। या वेरी गुड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर बेटा? This part will be always of dry ice and this remaining part will be of your Grignard reagent. Dun. ओके, चलो ये हो गया ना बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन। आ जाओ इधर पे, एग्जांपल देखो भर भर के। देखो मैंने पहले क्या लिया है। अच्छा ये मेथड का ड्रॉबैक क्या है? फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, अरे फॉर्मिक में एक ही, हाँ तो देख ड्राई आइस का मिनिमम 1 कार्बन एंड ग्रिग्नार्ड रीजन का 1 कार्बन। तो देख यहाँ पे आई हैव टेकन एग्जांपल, कैन यू सी? इफ यू टेक मिथाइल देन यू गेट एसिटिक एसिड। If it is take this phenyl, look, just now we did na beta, we got benzoic acid. Can you see? Hey Nerissa, are you getting it or not? Tell me dear, hello. Yes, sir. Yeah. Clear? Right? And this was multi-conversion beta. Remember beta how to convert alkyl halide into acid अगर मैंने बोला तो you know ना बेटा, we did that this example just now. Methyl iodide to acetic acid. I wanted to increase 1 carbon or not, tell me. So first you have to add KCN. So RCN मिलेगा, then RCN का acid hydrolysis. चलो, now next method is what? This we have done. Where we have done this? Alcohol, right? Primary alcohol on oxidation give aldehyde, and aldehyde will give you carboxylic acid. Okay, with same carbon, but okay, right ना बेटा? चलो बेटा आप भी आ जाओ। what is this? Which alcohol it is? Primary alcohol ना? तो प्राइमरी अल्कोहल से मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? एसिड, स्ट्रॉन्ग, सेम कार्बन। चलो बेटा दिस इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल ओनली, सो CH2OH की जगह पे क्या आ जाएगा? COH।
Primary alcohol will give you acid with same carbon. Now this is very interesting बेटा, ये अल्काइल बेंजीन वाले जो रिएक्शन है ना, oh yeah, oh yeah, ये देख बेटा, आ गया बेटा, अल्काइल बेंजीन, so this is ethyl benzene, methyl and, अच्छा बेटा अभी आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जहां पे बेंजीन अटैच है ना, उसपे ना ये वाला कार्बन विच इज अटैच टू बेंजीन शुड हैव हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, सब में है ना हाइड्रोजन, देखना. सो वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट दिस वन. वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन कमीनो 4. तो बेटा इसमें आपको खाली क्या याद रखना, पता है क्या, ये जितना भी अल्काइल ग्रुप है ना, ऑल दिस विल बिकम COH, बस दैट्स इट. All of them will become what? This is what you are supposed to remember. That's it. ये देख. So irrespective of the length of the chain, right? The entire side of the alkyl group is oxidized to carboxylic. बेंजीन से कनेक्टेड, Yeah. तो बेंजीन से कनेक्टेड कितना भी हो, लेकिन बेटा उस पे H होना चाहिए, पहले वाले कार्बन पे H होना चाहिए. अगर यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया रहता तो इस पे H है क्या? क्या? नो. तो वो वाला देगा नहीं. ऐसा MCQ आता है, मैं बताता हूं, सब आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेन. बराबर है. अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता था, ये अल्कलाइन है ना, तो एसिड बन के उसको किसमें कन्वर्ट कर देता था, वो सॉल्ट, कुक हो जाता था, फिर वापस में HCl डालता था. कभी भी बेसिक मीडियम रहेगा तो पता है ना, एसिड फिर वो बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बन जाता था. सेम वी डिड इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. देख बेटा, व्हाट इज द ट्रिक फॉर दिस, देख इस पे हाइड्रोजन है कि नहीं, इस पे भी हाइड्रोजन है ना सब पे, ये देख इस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, बेंजिलिक हाइड्रोजन बोलते हैं इसको. कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, उसको बेंजिलिक कार्बन, तो बेंजिलिक कार्बन पे बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए. अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन होएगा क्या, इल्ले. तो देख अभी ये देख, ये वाला एग्जांपल मैंने दिया है, देख बे इस पे हाइड्रोजन है क्या, नो 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 नो, तो नो रिएक्शन. देख ले यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, देख बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए. अरे मैं बताता ना, सुनना बेबी, रुक तो जा. ये देख बेटा, इसमें कितना भी बड़ा था, ये देख रहा है, ये कितना भी था, इसको देखने का ही नहीं, डायरेक्ट खाली क्या डालने का, पहले वो कुक बनेगा फिर वापस HCl डालना पड़ेगा. फिर को क्या वो देखने का था, ये ले. ये बात बहुत छाननी क्यों लग रही है. डन डन. ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन वी ऑलरेडी दैट वी हैव डन, थिंक. नो बेंजिलिक, सो लुक बेटा, क्लियर है बेटा, सो इट विल नॉट गेट अफेक्टेड. ड्राई आइस वी डिड, फिर कौन सा बाकी रह गया, दिस साइनाइड वी डिड. Oh, yeah. Wait. This reaction where you are done, tell me. ये वाला 11th में था. Yeah, I'll tell you the trick. हिंट में देता. हाँ, कोल्ड एंड हॉट, वेरी गुड बेटा. ओके, तो ये हीटेड वाला है बेटा. आपको पता है बेटा, आई गिवन यू ट्रिक इफ यू रिमेंबर बेटा, वेन एवर डबल बॉन्ड इज देयर, अल्कीन का था बेटा, अल्कीन का ऑक्सीडेशन विथ हॉट एसिड, तो अरे यार वाइट पे नहीं आ रहा है बेटा, ट्रिक क्या था बोलो बेटा, ऐसा देखने का. अगर HH है, अगर यहाँ पे दोनों साइड HH है, तो HH वाला किस में कन्वर्ट हो जाता था बेटा, इट विल गिव यू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. बट अगर एक R और एक H है, तो क्या देता था बेटा, एसिड. और अगर दोनों R होता तो, हाँ वेरी गुड, कीटोन देता था. ये याद आ रहा है कि नहीं. तो अभी आप गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड के इस तरफ कौन है, दोनों H है, तो क्या बन जाएगा ये, CO2. अच्छा ये वाले पे क्या है बोल बेटा, अरे देखना, ये एक H हो गया और एक क्या हो गया तेरा, ये
अल्काइल की जगह पे ये बेंजाइल ग्रुप है, मतलब बेंफिनाइल रिंग, तो ये क्या बन जाएगा, RCH होता तो एसिड बनेगा कि नहीं, तो ये देखिए बेंजोइक एसिड बन गया। क्लियर, रिमेंबर द ट्रिक। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, CO2 एंड वाटर। ये देखो टेन टेन एंड CO2 बना के नहीं, बोलो अब ये समझा क्या, क्लियर है। हेलो, अच्छा दिस इज साइक्लोहेक्सीन, व्हाट इट इज, साइक्लो, अच्छा बेटा इसको हम लोग ओपन के, तो ये देखिए डबल बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हो जाएगा इधर पे और इधर पे, और यहाँ पे दोनों पे क्या हो जाएगा, दिस विल रिंग ओपनिंग हो रहा है, रिंग, हाँ रिंग ओपनिंग, एंड दिस इज विच एसिड, काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स हेक्सेन डायोइक एसिड। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद आ रहा है, COOH है, बीच में CH2 कितना टाइम्स है इसमें, बोलो 4 टाइम्स है, याद आ रहा है, एडिपिक एसिड, ओम्स गैस, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सुक्सुनिक, याद आ रहा है बेटा, एडिपिक, ओके, एनी डिफिकल्टी टिल यार, हेलो, चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, एसिड डेरिवेटिव, एसिड का OH निकाल के NH2 डाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिडमाइड, OH निकाल के क्लोरीन डाल दिया तो एसिल क्लोराइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड, बरोबर है। चलो बेटा इस अभी सबका हाइड्रोलिसिस करने का है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड, इसमें भी बेटा मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बन जाएगा, बोल बेटा, एसिड, इसमें भी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, राइट ना बेटा, सेम थिंग इन ऑल। चलो बेटा ये देखो, पानी ऐड करेंगे तो एक एसिड बनेगा, क्लियर है, तो यही सब रिएक्शन हमने यहाँ पर आपको दिया है, देखो पहला टेंटन एंड एसिल क्लोराइड, व्हाट आई हैव डन बेटा, हाइड्रोलिसिस, देखिए HCl चला जाएगा, यू गेट एसिड और नॉट, टेल मी व्हाई वी यूज पाइरिडिन यार, बिकॉज दिस HCl इज व्हाट एसिड, तो ये बेस है, इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो देख बेंजोइल क्लोराइड है तो क्या दे देगा, बोल बेटा, बेंजोइक एसिड, अरे देखना HCl विल गो ना बेटा, ओके, चलो एसिडिक एनहाइड्राइड भी लिया तो क्या होता था बेटा, याद आ रहा है ना, अरे हाइड्रो तो दोनों एसिड मिलेगा, दोनों सेम सेम एसिड, देख रहा है ये बेंजोइक बेंजोइक, तो बेंजोइक एसिड, यस्टर, यस्टर में आपको पता है ना बेटा क्या होता था, ये वाले पार्ट का अल्कोहल बनता था और ये वाले पार्ट का एसिड, हाइड्रोलिसिस वी आर डूइंग, लुक, ए दिस विल बिकम मिथेनॉल एंड दिस इज हाउ मेनी कार्बन टू, सो एसिड एंड मिथेनॉल, O के साथ में जो R होगा उसका अल्कोहल बनता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट का एसिड, यहाँ पे देख ले बेटा, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, यहाँ पे क्या लिया है, इथाइल, तो देखिए इथाइल अल्कोहल बना के नहीं, एंड दिस इज व्हाट योर एसिड, ओके, look beta one by one, amide will give you what, carboxylic acid, sorry carboxylic acid and ammonia, got it, बेंजामाइड लिया तो क्या बन जाएगा, ए हीरो बेंजामाइड तो बेंजोइक एसिड, एसिटाइल, ये देख बेटा, इजी, व्हाई वी यूज पाइरिडिन, हैव यू अंडरस्टूड ना, तो बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजोइक एसिड, ओके, राइट ना बेटा, HCl को रिमूव करने के लिए होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड यू ऐड वाटर टू एसिडिक एसिड, यस्टार, देखा है कि नहीं, बट बेटा देख, मैंने हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन अल्कली, इट गिव्स व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी बेटा एसिडिक करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अल्कली में किया तो सॉल्ट मिलेगा कि नहीं, बोलो बेटा, तो देखना बेटा, अगर मैंने देखिए अल्कली लिया है तो आई गेट सॉल्ट, देखना बेटा एसिडिक एसिड, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस है, दोनों एसिड से क्या बन जाएगा, ये वाला एसिड तेरा क्या बन जाएगा, सॉल्ट, देख NOH वहां पे रिएक्ट हो जाएगा ना उसके साथ, कन्वर्टेड टू सॉल्ट, देख H गायब हो गया, वहां पे क्या आ जाएगा, Na, लेकिन मेरे को एसिड चाहिए था ना, तो मैं इसको फर्दर क्या डालूंगा, अच्छा ये जब सॉल्ट बन जाता है, सोडियम सॉल्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा, सोप होता है, अगर आप लोग कभी लाइफ में नहाए होगे तो सोप नाम का कोई चीज देखा रहेगा, जो हम लोग स्किन को लगाते हैं उसको सॉफ्ट सोप बोलते हैं, सॉफ्ट सोप आर विच सोप बेटा, पोटेशियम,
ये कौन सा है? धोने वाला सोप है। ये कौन सा है? सोडियम सोप और हार्ड सोप। सेपोनिफिकेशन। क्लियर है? लेकिन अपने को एसिड चाहिए हीरो। इसको मैं वापिस में HCl डालूंगा, हाँ देखा ना, एसिड बनेगा। डन डन डन। तो यही लिखा है यहाँ पर, देखे हीरो, देख, सेपोनिफिकेशन। देख यहाँ पे मैंने लिया तो देखिए बनता था, वापिस मेरे को एसिड पानी डाल के उसको क्या करना, एसिड हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता था। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड में कितने बॉन्ड होते हैं बोलो बेटा? कितना कितना रिएक्शन हो सकता है? O और H ब्रेक होगा। अच्छा, ये O और H कब ब्रेक होगा? जब O पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? लेस। मोर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये H आसानी से देगा क्या? नहीं। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बोले हीरो? C और OH के बीच। तीसरा क्या हो सकता है बोल? ये वाले पार्ट में रिएक्शन होगा। लास्ट वाला ये वाले पार्ट। टोटल कितना टाइप का रिएक्शन पड़ेगा हम लोग बेटा? 4। ठीक है। वन बाय वन, लुक, आई एम गोइंग टू टेल यू। लुक 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 लुक। फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑल एसिड आर व्हाट? जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, बट हायर जाएगी तो सॉलिड बनेगा। व्हाट इज विनेगर? 6 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये आपने 10th में भी पढ़ा था, यू माइट हैव स्टडीड। हाउ इट इज ऑब्टेन? यू हैव टू कूल इट, क्रिस्टलाइज एट 16.5 डिग्री ये डे। ठीक है ना? 16.5 या फिर यू ऐड 272 टू इट। एसिडिक एसिड विल सॉलिडिफाई, पानी का लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है। इट इज रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाट? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सॉल्युबिलिटी, ये एसिड में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है कि नहीं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं बोलो? यस। OH है ना, हेडफोन आएगा ना तो बेटा देखे देख, इट इज हाईली सोल्यूबल, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ओके। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर insoluble. Why? Because alkyl part is what? Electron repelling. So it will not dissolve. Boiling point will be also very high. तुमको पता है इसमें 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देख। इट इज हायर देन एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से भी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका होगा तुम्हारे सिलेबस के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन योर अल्कोहल, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देख क्यों रे? डाइमर बनता है, वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देखना भाई, एसोसिएशन में जाता था, याद आ रहा है? क्या हो गया बेटा? एकदम दुखी मत हो बेटा, ठीक है, इजी है ये। राइट, डाइमर। क्या खुश क्या हो रहा है भाई? ये ताली हो जा रहा है। Clapping, man. What happened, man? Huh? What? Where is? I don't know, man. He has not replied, man. What to do? Follow him and take your notes from him. Lecture number it is 9, huh? Oh yeah, come on, man. This is the last lecture. For what? Ah, Yeah, this is the last. Like, I mean, if you remain quiet, then only, huh? Okay. A chemical property, like acid, mein how many type of reaction we are going to do? Shobit, which bond first will break? OH. Then, yeah, it is a sigma only. Yeah, that is a sigma bond, single bond. What is saying? A next is CO bond. Yes. Third is what? COH. Yeah, this acid part will be involved. Last is what? R part will be involved. Hydrocarbon. Wherein substitution will take place. Clear? तो पहला O और H का. And OH में बेटा we will study reaction with metal. Base. Okay. Acidic property. Why? Because इसमें कौन दे रहा है? Acid is giving its what? H. The reaction in which H is given. Any substance which give H is what? Acid. So simple. Look here. Action of metal. If I take any metal, sodium is monovalent. So देखो, it will displace hydrogen or not. Karina ने कार मांगी. Highly reactive element will displace the lower one.
So what you'll get? Sodium carboxylate. Easy? If I take potassium, potassium carboxylate. ये बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा बोल बेटा? अच्छा ये एनीवे बेस के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर. व्हाट मैन? न्यूट्रलाइजेशन. इजी. देन carbonate is also base, so here salt water extra क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. मेटल कार्बोनेट पता है ना बेटा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड. सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Got it? If I take bicarbonate, same thing, salt water and carbon dioxide. Easy? तो चल दे बेटा, यहाँ पे आ जाओ इधर पे फटाफट. ये देखो डन डन डन. पहले तो ये देख एसिडिक नेचर क्यों होता है. अच्छा, हु इज मोर स्टेबल लाइफ में? एसिडिक एसिड को एसिटिक एसिड बनने का मौका मिलेगा या कार्बोक्सिलेट बनने का? तो क्या बनना पसंद करेगा? कार्बोक्सिलेट. व्हाई? बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल. व्हाई? रेजोनेंस हाइब्रिड. मैं बता रहा हूँ क्या. अरे एसिड है, एसिड हमेशा H+ देना पसंद करेगा ना लोग. व्हाई इट इज मोर स्टेबल बेटा? आई टेल यू. ए लुक हियर बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस है, दिखाई दे रहा है? अरे दिस नेगेटिव विल गो हियर एंड देन इट विल गो हियर, सो इट इज व्हाट बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पे आएगा? नहीं है. ठीक है. फिर व्हाट वाज देयर? ये देखिए एसिटिक एसिड, तो एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल. अभी देख बेटा, ये रिएक्शन मैंने बताया था ना बेटा सब. ओके ये रिएक्टिविटी बाद में बताऊंगा, पहले रिएक्शन कर लेते हैं. पहले रिएक्टिविटी पे पूरा एक क्लास, मतलब 15 मिनट्स आई हैव टू टेक. ए लुक लुक, वेट, पे अटेंशन हियर. ये देख बेटा, अरे देख ना राजा, ये देख हाइड्रोजन मेटल के साथ रहेगा तो देख कैल्शियम होगा तो ये ब्रैकेट में 2 आएगा. वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल और नाम दिया है, दिख रहा है कि नहीं? यस. ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड वी आर डूइंग? OH. यहाँ पे ऐसा लिखो, OH bond. Breaking of which bond? OH. Wait, what is? ठीक है. Hey, then we did reaction with whom beta? Look, alkali, salt and water. Example. Then we did bicarbonate. What you didn't write? You were supposed to write. This was the thing you were supposed to write. This. Look here. That's it. Yes. First property I am doing. Okay? चला जाओ. Hey, then base वही है, continued. अरे यार, इट रिएक्ट विद सॉल्ट एंड वाटर. कितना चिंदीगिरी है ये सब. इतना सारा एग्जांपल मैंने दिया है बस. बाइकार्बोनेट होगा तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आएगा. देखो भर भर के एग्जांपल दिया है. तुम लोग ये मोटा नहीं है इसमें, आपको मैंने बताया ना कितना सा फटाफट होता है. ये देखिए सोडियम कार्बोनेट का दिया. ठीक है. ओके नाउ या एक्शन ऑफ अमोनिया. एक्शन ऑफ अमोनिया नाउ एग्जाम में याद रखना, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अमोनिया एंड हीटेड, पहला ये NH3 इधर पे चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमोनियम एसिटेट. देन इफ आई हीट इट, तो ये इसमें बेटा क्या था बोलो बेटा? NH2 और एक H2 है ना, 4H था ना. Yes. 1 H2 and 1 O. This will go as a water. तो अभी बचेगा क्या? H2. NH2 and NH2, amide. So basically what you have to remember, when it is heated strongly, acetic acid with ammonia, you get acetamide. So if I take acetic acid, I'll get acetamide. Look, yeah, ethanamide. If I take benzoic acid, then benzamide. बस हीट करना. बस हीट करना है, अमोनिया और हीट करता हूं. ये बाद में मैं बताऊंगा. पहले हम लोग खाली प्रॉपर्टी कर लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है. चलो ये अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने थैलिक एसिड लिया था. इफ आई, यहाँ पे आपको पता है अमोनियम ऐड हो जाएगा, राइट? अमोनियम थैलेट. देन यू हीट इट, हीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है? अमाइड. कैन यू सी दिस? अमाइड. हमने वाटर, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, लिख दो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिसिंग है वहां पे. देखो then I will further heat it. Then I will further, when I further heat it, तो यहाँ पे से क्या गायब होगा? देखो बेटा, ये भाई ये NH2 था और यहाँ से एक H, तो एक NH2 और एक H मिलके अमोनिया चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ NH बचेगा. ये देखो बेटा NH बचा कि नहीं?
और ये इसको ज्वाइंट हो जाएगा दोनों, इसको कहते हैं इमाइड, थालीमाइड। क्या बोलेंगे? थालीमाइड, थालीमाइड। So when phthalic acid is heated, final product is phthalimide. अब वो लास्ट का पदार्थ क्या ये लास्ट वाला। हाँ। अभी तो मेरे को बता, यहाँ पे NH2 था ना, बोल बेटा। तो इसमें से NH2 में से क्या जाएगा? एक NH2 और एक H चला जाएगा, तो अभी NH बचेगा कि नहीं? तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, हो गया। हाँ, हीट किया ना हम लोग ने एक्स्ट्रा। ओके हाँ हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देख। हाँ। क्लियर? चलो अभी ब्रेकिंग किसका करने का है? OH हो गया, अभी किसका करने का है? COH। COH, COH में बेटा इट इज वेरी इजी बेटा। अभी सब रिएक्शन में देखना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेटा अभी व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन बेटा? ए लिसन, this O and this SO will become SO2. Yes. This Cl and this H will become what? HCl. तो अभी एक Cl बचा ना, वो यहाँ पे गया। तो देखा बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? COH, अल्कनॉइल क्लोराइड, राइट? सो एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड। अभी I can do this breaking by using what? PCl3. सेम थिंग विल हैपन बेटा, दिस विल ब्रेक। PCl3 में कितना Cl था? 3 था ना, तो एक इसके साथ चला जाएगा, फिर एक इसके साथ HCl। याद आ रहा है? वह नो नो नो, अरे PCl3 है ना ये बेटा। नो आई एम सो सॉरी, PCl3 ना बेटा, माय बैड। हाँ अच्छा, अरे ये बेटा आई कैन राइट दिस एज दिस वे और नॉट बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? ये PCl3 था ना बेटा, आई हैव टू बैलेंसिंग के लिए मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आई हैव टू टेक? 3। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? PCl3 ऐसा मुझे 3 बार लेना पड़ेगा। एंड देन बेटा 3 टाइम्स दिस आई विल टेक। अरे रिमेंबर बेटा, वो फिर क्या बनता था? ये 3H3PO3 बनता था बेटा, फॉस्फोरस एसिड एंड एसिटाइल क्लोराइड। PCl5 में ऐसा आएगा बेटा, देख देखिए PCl5 में बराबर आएगा, देख बेटा, ये O और ये POCl3 बन जाएगा, दिखाई दे रहा है? ये H और Cl, HCl। बेसिकली बेटा दीज ऑल आर व्हाट बेटा? क्लोरीनेटिंग एजेंट। SOCl2, PCl3, PCl5। दिख रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल दिया इसका। ओके देखिए यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, खाली आपको ये याद रखने का बेटा, ये OH गायब होकर यहाँ पे Cl आ जाएगा। नाउ ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन यू आर डन। एसिड एंड अल्कोहल व्हेनेवर रिएक्ट, ये तो आपको पता है, ये पानी बनता है उसमें से हु गिव्स OH? OH is given by whom? Acid. Therefore breaking of which bond? COH. Are you getting it? OH is given by whom? Acid, and alcohol में से क्या जाएगा? H. This reaction is known as esterification. This reaction is reversible. तो irreversible बनाने के लिए what you have to use? H2SO4. Right? If I carry out this reaction, वो सब जानने की जरूरत होते हैं। If I carry out this reaction in presence of dry HCl, then it is known as Fischer-Spire reaction. That you are not supposed to remember. अभी बेटा क्या बच गया? ये कैसे पता करेंगे कि अल्कोहल एसिड में से ही OH आ रहा है? How will you come to know that acid is giving OH? So I am doing tracer technique. Tracer में I am taking one radioactive element. यहाँ पे अल्कोहल में मैंने ऑक्सीजन कौन सा लिया था? 18, और एसिड में नॉर्मल एसिड लिया था, आइसोटोप। ऑक्सीजन इज 16 ना, उसका मैंने I2 का आइसोटोप वाला है। हाँ या ड्यूटेरियम वैसा नहीं, वैसे ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन के भी होते हैं ना। लोग यार अभी यहाँ पे जो वाटर मिला उसमें 18 आया है क्या? नहीं, मतलब ये अल्कोहल अपना ऑक्सीजन देता। सेकेंड पार्ट में मैं क्या करूंगा? एसिड में मैं 18 वाला आइसोटोप लूंगा, सेम रिएक्शन, और अल्कोहल को आई हैव टेकन नॉर्मल। अभी मुझे जो वाटर मिला उसमें 18 आया कि नहीं, बोलो बेटा? हाँ नो, वी टेक ना, वी प्रिपेयर एसिड 18 वाला।
No, you don't have to learn. We have proved that that this water में O is given by OH is given by whom? Acid. तो इस पे रट्टा क्या मारना है? Ratta, how do you know beta? Radioactive I have taken. अभी तक water sample, the sample of water which I get now here it will be radioactive. When I take this part, but here it won't be radioactive, right? So फिर क्वेश्चन क्या देंगे इसमें? You just have to look. अरे this I have no. Here you don't have to read anything. This is just for your explanation. No. तो फिर कैंसिल है। अरे ये तो पता है कि अरे ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया ना कि एसिड में से OH जाता है, इसमें से H जाता है। व्हाट मैन? सर वो रेटिंग पूछेंगे एग्जाम काय करतो काय। अरे राजा, ये देख ऐसा वो ट्रेसर टेक्निक वाला क्वेश्चन अगर दिया है क्या तुम्हारे इसमें? नहीं दिया रहेगा, नहीं है। यू डोंट हैव, यू डोंट हैव। नो बेटा, नो। ए नाउ अभी कौन सा पार्ट बाकी रह गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड में भी देखा टू एसिडिक एसिड। I am taking 2 acetic acid and I am doing dehydration. Dehydrating agent is which one? P2O. तो देख इसमें से पानी निकल गया एनहाइड्राइड। सेम उसी के नीचे ट्रेसर टेक्निक के नीचे। Now the problem is what बेटा? Can you see the above reaction was reversible? तो मुझे ये नहीं करना है, तो what I do? I will no. In practice, acetic anhydride is prepared by taking acetyl chloride and sodium acetate. ये देखिए दोनों को। अभी देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या? होगा तो प्रॉब्लम है। तो नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा ना मुझे। अभी इसमें से तू प्रोडक्ट कैसे सेपरेट करेगा? If I want to prepare mixed बनाना है तो I can do that. पहले एसिड से क्या बनाने का? What happened? Which one? This. Wait. पूरा लेके चलता हूं तो यहाँ पे। This part देख बेटा, ये तुम लोग को देखने का था। यहाँ पे देख, अभी पूरा बताता हूँ, देख ले। ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? OH, CO और OH का देख। दिस बॉन्ड, अरे लुक, क्लोरीनेटिंग एजेंट कौन थे? PCl3 PCl5 ऐसे। ये देख, दिख रहा है ये? इसको मैं देख ऐसा लिखता हूं, देख 3 बार लेने का, अब समझेगा तेरे को। देख ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस एसिड H3 नहीं पहले बता रहा हूं। फिर एसिटाइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स। फिर देख PCl5 लेके तो देख ऐसा ब्रेक होगा, याद आ रहा है कि नहीं? फिर SOCl2 वाला ये ले, ये देख HCl SO2 RCl बन गया। बेस्ट मेथड इसको क्यों बोलते हैं कि बेटा ये सब गैस बन के चला जाएगा। ये तेरे को क्या करने का है? COH के जगह पे क्या डालने का है? Cl। तो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड कौन सा रिएजेंट यूज करेगी बोल बेटा? विच इज द बेस्ट वन? अच्छा, विच इज कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बोला। आई कैन यूज PCl3, अभी आई कैन नॉट यूज NaCl। बराबर है बेटा? यस्टारिफिकेशन, ये ले बेटा यस्टार। CO बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है बेटा, बराबर? ये सब जानते बेटा। यार वो ट्रेसर टेक्निक था, हो जाता। अभी तेरा क्या डाउट था बेटा? अल-हबीबी एनहाइड्राइड्स, ये देखा गया एनहाइड्राइड्स। तो एस्पिरेशन का है क्या मैकेनिज्म और केमिकल प्रॉपर्टीज आज मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा वो बेटा, थोड़ा रह जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ वो सब मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लुक, ये देखिए एसिड एनहाइड्रेटेड, आई नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉट? टेल मी डियर।
Yes. So what it will do? It will remove water, dehydrating agent. तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड बने. ओके. बट ये रिएक्शन क्या था? रिवर्सिबल है देख. बट आई एम इंटरेस्टेड इन ना प्रोडक्ट. what to do बेटा? So what I do बेटा, look here, P2O5 देखिए सारे रिएक्शन रिवर्सिबल थे. तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं. प्रोडक्ट विल गिव रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट. So what to do? Yield of anhydride will be very less because reaction is reversible. So what we do? We take acetic acid. But first I'll make it react with what beta? Look here. NOH. I'll get what? Sodium acetate. And इसको Cl2 के साथ करूंगा तो acetyl chloride. अब इन दोनों को मैं रिएक्ट कराऊंगा. अब इन दोनों को देख ऐसा रिएक्ट करेंगे. तो व्हाट विल हैपन बेटा? देख Na और Cl चला जाएगा. अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या? कैन यू सी दैट? So that is what I was explaining. Look, this reaction is irreversible and therefore the yield is good. और इससे हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं. पहले वाले में दोनों एसिड सेम ही लेना पड़ता है. इसमें तो आई हैव चॉइस ना बेटा. लुक, I have your choice. Look here, hey baby, I can change this acid and because these two are two different reactions. I have your option, beta. Clear? अब बेटा देख ये हो गया, ये हो गया. अभी अमाइड्स कैसे बनाते थे? एसिड को हीट विद अमोनिया. लुक, ये सिंपल होता था बेटा, राइट ना? एंड देन यू हीट इट, यू गेट अमाइड. So you type benzoic acid, I'll what get? Benjamide. Look, फैलिक एसिड. देख ये बनता था यहाँ पे. फिर ये क्या हो रहा था? तूने जो क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, इसको फर्दर हीट करेंगे तो देख बेटा क्या हो जाएगा. हाँ, हेलो, पैक करके लिख था. ठीक है. ये अभी हमारा ये हो गया. अभी ब्रेक रिएक्शन कौन सा होगा इन्वॉल्विंग? ये कहाँ पे पढ़ा था आप लोग ने? पता है? एक तो एल्डिहाइड में और अल्कोहल का प्रिपरेशन. सॉरी, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल. हाँ, ये देखना बेटा, we use lithium aluminum hydride and this, so Cu डबल बॉन्ड वो CH2 हो जाता था. तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा कि नहीं बोल? ठीक है. और इसमें कौन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता था? सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर सकता था. प्राइमरी अल्कोहल दिखा कि नहीं? डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप. हाँ, याद रखना. ये अभी क्या बनेगा बोल चल? ये C डबल बॉन्ड को क्या कर देना? CH2. ठीक, बरोबर है. डी कार्बोक्सिलेशन कहां पे पढ़ा था बोलो? इन 10th. Yes, sir. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. I was in different boats. देन ऑल्सो इट वॉज देयर. ये देख बेटा, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है कि नहीं? रिडक्शन. Yes. देखिए सब रिएक्शन दिया है ना मैंने. अच्छा, फ्रॉम हाइड्रोका डी कार्बोक्सिलेशन. ओके, यू टेक बेटा रुकोना एंड NaOH. सो व्हाट यू गेट? अरे भाई ये देखना, ये देख यू गेट एन अल्केन विद 1 कार्बन एटम लेस. यू हैव टू टेक सोडा लाइम. व्हाट यू हैव टू टेक? सोडा लाइम. बाय सोडा लाइम यू हैव टू टेक बेटा, बिकॉज कैल्शियम खाली NaOH इज डेलिक्विसेंट, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था. तो वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड. लुक हियर डी कार्बो. ये देख ना भाई, ये हीरो, ये देख सोडा लाइम. इसमें देखना कितना इजी है. सोडा लाइम लेते थे, ये बन जाएगा अल्केन बन जाएगा विद 1 कार्बन एटम लेस. क्यों 1 कार्बन एटम लेस? अरे इसमें एक ये यार ये था ना, ये वाला गायब हो गया तो ये वाले का ही अल्केन मिलेगा. तो तूने अगर छत्री कुना लिया तो तेरे को क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड लेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? मीथेन. ये देखना भाई मेरे, N कार्बन है तो N-1 कार्बन. सोडियम एसिटेट विल गिव यू मीथेन. क्लियर है? नाउ द लास्ट पार्ट. लास्ट रिएक्शन में क्या होता? तो जो एसिड के बाजू में R ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड. हाइड्रोजन विल बी
सब्स्टिट्यूटेड लास्ट पार्ट ये देख। अच्छा इसका आंसर बताओ, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सोडा लाइन लिया है तो क्या मिलेगा बोलो। सोडा लाइन क्या करता था, COH की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये H बन जाएगा। अरे ये वाला कार्बन गायब हो गया, H बन जाएगा कि नहीं, तो बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन की OH भी है ना उस पे, बेंजाइल कैसे होगा, बेंजीन बेंजीन पे OH होता है, फिनॉल होता है, बचा क्या फिर? फिनॉल, So that's not an option. but phenol carbolic acid, phenol is also known as carbolic acid, भूल गई, You do it. या phenol is also known as, nice question it is। अरे देखना बेबी, ये देख, ये देख, ये गायब हो जाएगा वहां पे, ये देख ये बनेगा, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्लियर, चलो ये लास्ट वाला रिएक्शन आ जाओ। अरे ये लुक बेटा, वी डिड दिस, वी डिड दिस, वी डिड दिस, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, ये हट जाता है लास्ट टाइम में इस ऑप्शन में। We have set off a firework in the हाँ वो भी फटाकड़ा फोड़ दिया था। कौन सा एक बॉम्ब पे था ना, क्या सब एक्चुअल बॉम्ब सेट ऑफ, बॉम्ब था थोड़ा, मतलब स्मॉलर वर्जन। अभी लेके चले यहाँ पे लेके आते ये साइड में, लेकिन आगे like throw in front of the wood ही गया and then like you know we have done long, अरे एक ही रिएक्शन है उसमें। long भी वो there are six of one of the bomb, yeah, आ गया। type of bomb we put in ground, right? What is it? I think we have to do a lot of them. Then videos of us with we have a good research. There's this before level, yeah, there's in like 9th and there is the videos of us that they writing a test, and they you can and we are taking videos from up like आ गया चलो, ये ले बेटा सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन। अच्छा चल बस, अल्फा हेलोजिनेशन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन। चलो बेटा, ये दिव्या बेटा, ये देख, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये कार्बन को, ये अल्फा है बेबी, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बस तो वहां पे हेलोजन आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, हाँ, उसको हम लोग कहते हैं हेल-वॉयलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये देख बेटा, H की जगह पे कौन आ गया, X आ जाएगा, बस हेल-वॉयलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल 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 है, ये देख रहा है HVZ, ये अल्फा है, अल्फा पे X आ जाए, और एक बार करेंगे तो और एक H जाके X आए। अगर अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होएगा, बस वही दिया यहां पर। ये देखना H के, देखना अल्फा पे ब्रोमीन आ गया कि नहीं, रेड फॉस्फोरस एंड वाटर। अच्छा इसमें टोटल कितनी बार आ सकता है बेटा, इसमें कितना था, 3 H था, तो 3 बार आएगा, 1 2 3, बराबर है, ओके। ये देख बेटा, हम लोग को लेकिन एक ही बार करना है इस पे बेटा, ये देख H की जगह पे क्या डाल दोगे बेटा, रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन तुमको पता है बेटा, बेंजीन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर नहीं नहीं, ये बेटा अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड, इफ देयर इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड ग्रुप देन इट इज विद डायरेक्टिंग मेटा, तो मेटा पे ही होगा बेटा। देख, इफ आई डू नाइट्रेशन इट विल हैपन ओनली एट विच पोजीशन, अरे बेंजीन पे अगर कोई भी ग्रुप है बेटा तो इट इज व्हाट बेटा, एसिड ग्रुप है तो इट इज विद डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज ऑलवेज विद डायरेक्टिंग, देख देखिए ब्रोमीन करूंगा तो कहां पे होगा, मेटा पे ही आएगा, डन 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 डन। अच्छा ये वेट, चैप्टर इज नॉट डन, इसमें बेटा क्या क्या बाकी मैं बता देता हूँ, वी हैव टू स्टडी, मैंने बहुत सारे आपको एसिड दिया रहेगा विच विल बी मोर एसिडिक, विच विल बी लीस्ट एसिडिक, दैट पार्ट वी हैव टू डू, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। Sir, can you send today का recording एक बार? क्या हो गया, Sir, can you send today का recording एक बार? यहाँ मैं भेज दूंगा, सारे रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, ठीक है ना। Okay, sir. break actually